हेलो स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। वो लीगल मैटर की है। एक्सरसाइज नंबर 38 है। 83 वर्ड्स पर मिनट पर है ये 5.2 मिनट्स के लिए और 432 वर्ड्स हैं इसमें। शुरू में डिक्टेशन है 5 मिनट की। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस जो भी मेरे व्यू में इम्पॉर्टेंट हैं उसकी मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ। और क्योंकि ये नंबर 38 है तो मैं आपको 38 जो लीगल मैटर्स हैं उनकी डिक्टेशन अभी तक मैं दे चुका हूं। और जिसमें किसी में सिर्फ मैंने ऑडियो दी है, किसी में मैंने आउटलाइन भी साथ में दी है। और एक्सरसाइज 30 ऑनवर्ड्स मैंने आपको आउटलाइंस दी हैं एंड में और उनको एक्सप्लेन भी किया है और जहां हो सका है मैंने आपको उसका मीनिंग भी बताया है। तो इसमें मैं जो आउटलाइंस पहले मैंने कवर की हैं वो मैं इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई ऐसा हो तो आप पिछली देख लेना मेरी ऑडियो। और डिक्टेशन जो है, पहले डिक्टेशन करिए, ट्रांसक्रिप्शन चेक करिए, मिस्टेक्स देखिए, उसके बाद आउटलाइन देखा करिए जो आपको ओमिशंस में या सब्स्टिट्यूशन में ज़रूरत पड़े। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके वर्ड्स कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिस हो जाते हैं, कईयों की लाइन मिस हो जाती है और वो इसलिए होती है क्योंकि वर्ड्स एक जैसे आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई आप देखते होंगे पैसेजेस में पेटिशनर कई बार आता है, लेकिन अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे, उसका मीनिंग नहीं समझेंगे जो भी हम टाइप कर रहे हैं, तो हम जो है बीच में जैसे ही हमारी नज़र इधर से उधर होती है हम उसको आगे पीछे पढ़ लेते हैं और इसी तरह उसमें गैप आ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचेंगे आप ठीक करके आए हैं, लेकिन उसमें अगर कोई ऐसा गैप आ जाएगा तो वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। इस चीज़ को आप प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। और मैं अब शुरू करता हूँ डिक्टेशन। थैंक यू। प्लीज़ गेट रेडी फॉर ए डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 38 from the legal material. 5 seconds. Start. The petitioner has sought appointment of her son on compassionate ground, contending that her husband, while on duty, had fallen seriously ill and he was absent from duty, and his absence was treated as resignation. Stop. It is asserted by the petitioner that while in service, both the kidneys of her husband were damaged and he was on daily dialysis. Stop. In the circumstances, it is pleaded that her husband ought to have been retired on medical grounds. However, he was not retired and he superannuated. And after he superannuated, one of the son should be given appointment on compassionate ground. Stop. The husband of the petitioner filed a writ petition seeking a compensation of rupees 30 lakhs and a prayer that he may be allowed to retain the railway quarter on nominal rent. Stop. The husband of the petitioner had also sought that one of his son be given appointment with the respondent so that his treatment could continue. Stop. The writ petition was disposed of with liberty to the husband of petitioner to take such action as permissible in law in respect of his claim for recovery of compensation for rupees 30 lakhs and for the claim of appointment of one of his son in the railways. Stop. The husband
of the petitioner had, however, passed away on 6th April 2007. Stop. After the death of the petitioner's husband, an application was filed before the tribunal for compassionate appointment, which has been declined on the ground that the husband of the petitioner was never declared medically unfit during his entire service, and he superannuated, and he did not raise this dispute till the date of his retirement, and he continued to get salary and other perks during his employment. Stop. The tribunal also noted that only after retirement the plea of sickness and compassionate appointment had been raised. Stop. The petitioner has therefore challenged the order dated 3rd June 2009, Shrimati Kamala Devi versus Union of India and others, declining plea of the petitioner for appointment of her son on compassionate ground. The learned counsel for the petitioner has contended that the husband of the petitioner should have been medically examined by an appropriate board, which was to be constituted by the respondent. Stop. The learned counsel, however, not being able to disclose as to what steps were taken by the deceased husband of the petitioner on account of alleged non-constitution of the medical board. Stop. This also cannot be disputed by the petitioner that despite the alleged sickness, her husband continued to attend the office and discharge his duties in normal course till he superannuated on attaining the age of superannuation. Stop. अब हम देखते हैं आउटलाइन इस एक्सरसाइज 38 की। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट देखिए पी हाफ और मेंट अपॉइंटमेंट। उसके बाद है कंपैशनेट। कंपैशनेट में देखिए पहले पैशन और फिर टी नीचे और ऊपर डॉट लगेगा कॉम्पैशनेट। स्पेलिंग आप जानते होंगे COMPASSIONATE कंपैशनेट। और उसके बाद है कंटेंडिंग। टेंडिंग देख रहे हैं आप, कन लगाना ऊपर। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन, सिंपल है ये। और उसके बाद है असर्टेड। असर्ट होगा तो आर हाफ हो जाएगा, लेकिन असर्टेड है तो आर पूरा होगा, टी हाफ होगा। उसके बाद है किडनीज। किडनीज जब वर्ड आएगा तो आप हो सकता है ऐसे वर्ड आए, लेकिन कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किड और नीज। ठीक है। उसके बाद आप इनको चाहें तो इंग्लिश में भी जल्दी जल्दी में लिख सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। किडनीज, उसके साथ है डायलिसिस। डायलिसिस में SS आपको क्लियर दिखाना है, SS। और स्पेलिंग इसके देख लीजिए DIALY डायलिसिस। और वैसे ऊपर ट्राइफोन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप सोच समझे तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद वर्ड आया है प्लीडेड। प्लीडेड में प्ली और डिड डी हाफ आएगा। ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो आप प्लीडेड में डी काट सकते हैं। दोनों आप ऑप्शन रखिए जैसे आपको सूट करे। नेक्स्ट इज ऑट टू हैव बीन। ऑट जो होता है वो हु की तरह अबव द लाइन लिखा जाता है। ऑट टू हैव उसके साथ वी की हुक लगा देते हैं, तो ऑट टू हैव बीन ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल ग्राउंड्स। मेडिकल ग्राउंड्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, अलग लिखें तो भी मर्जी है। सुप्रानुएटेड। सुप्रानुएटेड। सुप्रानुएटेड में डबल एन आएगा, ये याद रखना।
SPR और NT हाफ सुपरानुएटेड। और इसमें सुपरानुएशन इज सिमिलर टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जो होती है वो प्रीमेच्योर जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले भी हो सकती है, वॉलंटरी भी हो सकती है, कंपल्सरी भी हो सकती है। लेकिन सुपरानुएशन जो होता है दैट इज एग्जैक्ट एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। जो भी आदमी एज ऑफ रिटायरमेंट जैसे 60 है, 60 पे रिटायर हुआ है तो वो रिटायर नहीं हुआ, ही है सुपरानुएटेड। उससे पहले या उससे बाद में होगा उसको हम रिटायर्ड बोलते हैं। तो दिस इज अ टेक्निकल डिफरेंस विच यू शुड नो। सुपरानुएटेड, उसके बाद वर्ड आ रहा है कंपेंसेशन। तो PNS करेंगे, फिर शन करेंगे और ऊपर कॉम लगाएंगे, कॉम्पेंसेशन। उसके बाद आउटलाइन है लिबर्टी। आप जानते हैं ग्रामर लॉग BR अबव द लाइन, बी कर लेना, डार्क नहीं है यहाँ पर। लिबर्टी है ये। उसके बाद है परमिसिबल, उसमें पूरा लिखना पड़ेगा परमिसिबल को। नेक्स्ट वर्ड है मेडिकली। जब मेडिकली होगा तो आपको डॉट दिखाना है इसमें, जैसे मैंने दिखाया मेडिकली, और उसको पढ़ना भी है। नेक्स्ट वर्ड है अनफिट। अनफिट को आप चाहे लाइन पर लिखें चाहे अबव द लाइन लिखें, आपकी चॉइस है, बट वॉवल अगर दिखाएंगे अन का तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो N और F हो गया तो आप NF भी पढ़ सकते हैं, आप उसको नवंबर भी पढ़ सकते हैं, आप उसको कुछ और NV का 2 या 3 ऑप्शन ही होती हैं, नेवर भी पढ़ सकते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, इसमें अन जब लगा देंगे तो अनफिट आप पढ़ पाएंगे उसको। नेक्स्ट आउटलाइन है पर्क्स की। पर्क्स जानते हैं हम, पर्क्स को फैसिलिटीज़ कह लीजिए या एडिशनल जो भी इन एडिशन टू सैलरी जो भी पर्क्स मिलते हैं, PERKS है और ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने आउटलाइन दी है। आप अगर इससे बेटर लिखते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चाहें तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज श्रीमती कमला। तो श्रीमती को श्री करके M हाफ दिया जाता है, नीचे आप डबल टिक दीजिए, दूर से पता लगेगा ये कोई अलग से वर्ड है। श्रीमती कमला KML कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं, श्रीमती कमला। उसके बाद देवी है, देवी की ऑप्शन भी यही है, D और V करना पड़ेगा और नीचे आप डबल टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है वर्सेस। जो केसेस होते हैं सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, तो ये वर्सेस की आउटलाइन है और आप चाहें तो VS लिख सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जो सर्कुलर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने वर्सेस की जो 2-3 ऑप्शन भी दी हैं आपको कि आप चाहें तो VS डॉट कर सकते हैं, V/S कर सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने लर्निड के लिए लिखा है कि LD कर सकते हैं, या अंडर सेक्शन के लिए आप U/S कर सकते हैं। तो अगर आपको अंडर सेक्शन आता है तो देयर इज़ नो नीड टू राइट अंडर सेक्शन, पूरा मत लिखिए, टाइम बचाइए U/S करके। इसके अलावा अगर आपको कोई 30 lakhs जैसे फिगर आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने 30 लिख के उसके साथ 00 काउंट करनी है, जस्ट राइट 30 इन डिजिट एंड देन लैक्स, ठीक है। और वर्ड में चाहिए तो वर्ड में आप लिख सकते हैं 30 lakhs। जो कन्वीनियंट आपको वही लिखिए, जो आपका टाइम बचा सके, जो आपको ईजी लगे वही लिखिए। उसके बाद है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया देखिए मैंने लिखा है और मुझे पता है कि इसका नाम है, तो मैंने उसके नीचे डबल टिक लगाए हैं। एंड अदर्स, और अदर्स में भी अगर अदर्स पूरा लिख सकते हैं या ORS भी चलता है, अदर्स का शॉर्ट है ये। नेक्स्ट है मेडिकली, वो मैंने शायद पहले भी बताया आपको। एग्जामिन्ड, अब एग्जामिन्ड जब पास्ट में आएगा या तो आपको MN छोटा करना पड़ेगा या आप चाहें तो उसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट हमें अबव द लाइन लिखना है और एप्रोप्रिएट के अगर उससे पहले अगर आप डॉट लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ताकि आप इसको प्रॉपर ना पढ़े किसी भी उसमें, एप्रोप्रिएट पढ़ा जाएगा इजीली। नेक्स्ट आउटलाइन है कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यू लिख के उसके साथ टिड आपको अलग से
दिखाना है। नेक्स्ट है एज टू वॉट, एज टू वॉट, और उसके बाद लास्ट है आउटलाइन सुपरानुएशन। पहले मैंने सुपरानुएट बताया था आपको, ये सुपरानुएशन की आउटलाइन है। दैट्स ऑल, थैंक यू।